আরো জোরে বলুন। যারা রাষ্ট্রের বিরোধিতা করছে, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং স্বামী প্রণবানন্দের তৈরি করা বাঙালি হিন্দু হোমল্যান্ডের ভিতরে বসে, তাদের কর্ণগোচর হওয়া দরকার। ভারত মাতা কি জয়, জয় শ্রীরাম। হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের সাথে আমি পশ্চিম বাংলার দার্জিলিং থেকে দীঘা, কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার, লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা এসেছেন, গণদেবতা জনতা জনার্দন, বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল, যার একটাই মন্ত্র রাষ্ট্র সর্বোপরি, রাষ্ট্র সর্বোপরি, নেশন ফার্স্ট, নেশন ফার্স্ট। বিজেপির দেবতুল্য কার্যকর্তাকে প্রণাম জানাই। আমরা শুনব বিশ্বের সর্বশক্তিমান নেতা, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির বক্তব্য। আমরা আজ বক্তব্য রাখব না। আমি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হিসেবে যে গুরু দায়িত্ব দল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন, গত 5 বছর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। আমি মাননীয় মোদীজিকে আমার দণ্ডবত প্রণাম নিবেদন করি। রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির লোকপ্রিয় সভাপতি, রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য, ভারত সরকারের 2 রাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুর, 3 প্রাক্তন সভাপতি বরেণ্য তথাগত রায়, সম্মানীয় রাহুল সিনহা, সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ এবং সর্বোপরি মাননীয় মিঠুন চক্রবর্তী সহ সম্মানিত মঞ্চ। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথা আমরা শুনব। তিনি 3 দিন ধরে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ সফর করছেন। 18,700 কোটি টাকার উন্নয়ন দিয়ে গেছেন। তাই আজকের এই সভা থেকে পরিবর্তনের সংকল্প নিতে হবে। সবাই বলুন, পরিবর্তন হচ্ছে, এবারে পরিবর্তন হচ্ছে। বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, মা বোনের সম্মান চাই, চাকরি চাই, শিল্প চাই, অন্নদাতা কৃষককে বাঁচাতে চাই, অনুপ্রবেশ মুক্ত বাংলা চাই, চোর মুক্ত বাংলা চাই, জিহাদি মুক্ত বাংলা চাই, মৌলবাদী মুক্ত বাংলা চাই, জঙ্গি মুক্ত বাংলা চাই। তাই প্রধানমন্ত্রীজি দমদমের মিটিংয়ে বলে গেছেন, সাংস্কৃতিক রাজধানী দেশের পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা, শিল্প সবকিছুতে 1 নম্বরে ছিল। তিনি বলেছেন, বাংলার হিত গৌরব ফেরাবে বিজেপি। গ্যারেন্টারের নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। আমরা মোদীজির নেতৃত্বে ডবল ইঞ্জিন করব, রাষ্ট্রবাদী সরকার করব এবং আদর্শ বাঙালি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ করব। তাই বলুন, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, আরো জোরে পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। গো মাতা কি, গঙ্গা মাতা কি, মাতা কালী কি, মাতা দুর্গা কি, হর হর। নমস্কার। আপনারা ভাবছেন দাদা একটা কিছু বললো না, হাসছে কেন? এই জন্য হাসছি, এই রাজ্যের প্রধান বলেছেন
আমরা 500 টাকা দিয়ে লোক এনেছি। 500 টাকা দিয়ে এত লোক, বাপরে বাপ। তাহলে ভাবুন আপনি 1500 টাকা দিয়ে কত লোক আনেন। আমরা 500 টাকা দিয়ে লোক আনি, আপনার 1500 টাকায়ও লোক জমে না। এই জন্য এই ভাতা ওই শ্রী এইসব দিয়ে লোককে টুপি পরিয়ে এখানে নিয়ে আসেন। এই জন্য আসছি। আরো আসছি আরেকটা কারণে। উনি বলেছেন কি আমাদের গলায় দড়ি দিয়ে মরতে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা মরব, আমরা গলায় দড়ি দিয়ে মরব, কিন্তু আপনি কথা দিন আপনি রেল লাইনের মাথা দিয়ে দেবেন। আপনারা সবাই রেল লাইনে মাথা দেবেন, আমরা গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়ব। এই জন্য আসছিলাম। এই ধর্ণা দিয়েছেন কিসের জন্য পড়ে জানলাম। একটা লোকের 389টা ছেলে মেয়ে, একজনের 389টা ছেলে মেয়ে, একজনের 310টা। উনি ধর্ণা দিয়েছেন তুই 400 করিসনি কেন। আমি এসআইআর নিয়ে লড়ছি, 389 থেকে 400 করিসনি কেন। কেন সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এটা অসম্ভব, বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব। ইনি 389 জনের বাবা। তা আমি সেই বাবার সাথে দেখা করতে চাই, আমি ওনার পায়ে হাত দিতে চাই যে দাদা আপনি কি খান, আপনি একটু দয়া করে বলুন আপনি কি খান। একজনের 310টা ছেলে মেয়ে, আমি তার পায়ে হাত দিয়ে বলতে যাই দাদা আপনি কি খান। ওই তাদের জন্য উনি লড়ছেন, এটা ভাববেন না আপনাদের জন্য লড়ছে। ও 310 কেন 325 হয়নি, ওই জন্য লড়ছেন। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এটা অসম্ভব, বৈজ্ঞানিকভাবে এটা সম্ভব নয়। তাহলে 389টা যার ছেলে মেয়ে, একটা মৌজাতে তো 600 সিট থাকে, 600 ভোটার, ওই একজনই আমাদের হারিয়ে দেবে। ওই একজন 389টা ভোট দিয়ে আমরা হেরে যাব। আর এত হাসি পায় যখন উনি বলেন 1 মিনিটের মধ্যে তোদের কেটে শেষ করে দেব। বলে আমি আসি বলিয়ে বাঙালি হিন্দুরা বেঁচে আছে, এই তো 1 মিনিটের মধ্যে সবাইকে জড়ো করে তোদের ফেলে দেব। সেই জন্য খুব হাসি পাচ্ছে আমার। আপনি 1 সেকেন্ড এত সময় নিচ্ছেন, একটু বলুন না পুলিশকে নিরপেক্ষ হয়ে যেতে। 30 সেকেন্ডের মধ্যে খেলা শেষ করে দেব। 30 सेकंड, आधा मिनट में गेम खत्म कर देगा। एक बार आओ ना, आमने सामने आओ, देखो बीजेपी में क्या ताकत है, देख लो। खाली पुलिस को बोलो तुम निरपेक्ष हो जाओ। আমি কথা দিচ্ছি আমার সমস্ত আদিবাসী আমার ভাই বোনদের, আমরা যদি আসি আপনাদের সব কষ্ট দূর হবে। পড়াশোনার জন্য একটা টিচার নেই, আসবে। যত কষ্ট পেয়েছেন আমরা সব দূর করব, এ আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। যে আলু চাষি কষ্ট পাচ্ছেন, কথা দিচ্ছি এখানে যেদিন আমরা সরকারে আসব প্রথম কাজ আপনাদের জন্য করব, আলু চাষিদের জন্য করব। আর ভাই সত্যি আমি বাতেলা দিই না, আমি যা বলি স্ট্রেট কাট বলি। আর একটা কথা আমার মনে পড়ছে এইমাত্র, মানে যত ধরনের মিথ্যে কথা উনিই বলেন। আমি বলি কি উনি 10 জন পলিটিশিয়ানের মধ্যে ভারতবর্ষের উনি একজন, সবাই আমার উপর রেগে যেত, কি করছো দাদা, উনি একটা ফেইল্ড পলিটিশিয়ান, উনি একটা বাজে পলিটিশিয়ান, আপনি ওকে 10 জনের মধ্যে একজন বলছেন। তার কারণ আছে রে, কেন বলছি, উনি জানেন একটা সমাজের
মেরুদণ্ড ভাঙতে কি লাগে? প্রথম হলো শিক্ষা, দ্বিতীয় হলো কার্য। উনি শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কার্য অবস্থা দুটোই শেষ করে দিয়েছেন। একটা সমাজকে ভাঙার জন্য এটাই দরকার। সেই জন্যই আমি বলেছিলাম 10 জনের মধ্যে একজনে উনি। দুনিয়াতে অনেক ধরনের চিফ মিনিস্টার দেখেছি, এই রকম চিফ মিনিস্টার দেখিনি যিনি কথায় কথায় মিথ্যে কথা বলেন। এত মিথ্যে বলেছেন যার মিথ্যে বলার সময় নেই। কারণ আপনাদের সূচনা দিচ্ছি, হাত ভেঙেছে, পা ভেঙেছে, এবার কিন্তু আরো কিছু ভাঙতে পারে, তার জন্য তৈরি থাকবেন। হয়তো চলে গেল আইসিইউতে, আর আইসিইউ থেকে বক্তৃতা দিচ্ছেন, আমার কি হবে? আইসিইউ থেকে বক্তৃতা দেওয়া যায়, উনি এমনভাবে ব্যবস্থা করবেন তাতে আইসিইউ থেকে বক্তৃতা দেওয়া যায়। যাই হোক, বেশি কথা বলবো না। আমি জানি স্যার এসে গেছেন, স্যারকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমার এখানে যারা বসে আছেন তাদেরও প্রণাম। ডায়লগ তো বলতেই হবে, বলে নি, আবার বলবো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো। পরেরটা নিজেরা বসিয়ে নেবেন। আরে এটা একটা সিনেমার ডায়লগ, এটা মনোরঞ্জন করার জন্য বলি। মারবো এখানে, তোরাই যখন বলিস তাহলে আমার দরকার কি বলার? নাম তুফান, বছরে 1-2 আসি, যখন আসি তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যাই নিজেকে যারা ভগবান মনে করে তারা তাদের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভালো থাকবেন, নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। भारत माता की वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नितिन नवीन जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। আমার সামনে অগণিত জনতা, যারা পশ্চিম বাংলার গ্রামগঞ্জ থেকে কাল থেকে রওনা দিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে আমি নতমস্তকে প্রণাম জানাই। এই জনতা জনার্দন এবারে পরিবর্তনের সংকল্পকে বাস্তবায়িত করবেন, এই আশা আমি রাখি। আমার সঙ্গে পেছনে পুরো মঞ্চ জুড়ে বসে আছেন পশ্চিম বাংলার যারা মাথা, মাননীয় প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিরা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সমস্ত সাংসদ, প্রাক্তন সাংসদ, প্রদেশের সমস্ত পদাধিকারী, এছাড়াও বহু বিশিষ্ট মানুষ, মাননীয় মিঠুন দা, হর্ষবর্ধনজি, স্বপন দা ইত্যাদি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন। সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। বন্ধুগণ, প্রত্যেকবার ইলেকশনের আগে মার্চ মাসে আমরা ব্রিগেডের সভা করি। আপনারা ব্যাপক সংখ্যায় এসে একে সভাকে সফল করেন, উপচে পড়ে সভার সংখ্যা। আজকেও তাই বিহঙ্গম দৃশ্য। গরম আছে, কষ্ট হচ্ছে, আমরা জানি, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা এখানে পরিবর্তন হোক। তাই এই যে তীর তীর করে হাওয়া বইছে, এই যে বিজেপির হাওয়া, পদ্ম ফুলের হাওয়া, তাতে চারিদিকে পদ্ম ফুল কাঁপছে, উড়ছে। এই সুন্দর পরিবেশ আপনারা সফল করে তুলেছেন। আমরা তো প্রস্তুত আছি, সংকল্প নিচ্ছি যতক্ষণ না পশ্চিমবাংলায় পরিবর্তন করব, বিজেপিকে ক্ষমতায় আনবো। জল হোক, রোদ হোক, বজ্র বিদ্যুৎ যাই হোক, যুদ্ধ হোক, আমরা লড়াই করব, সংকল্পে পৌঁছবো। কি তাই করব তো? কিন্তু আমরা তো কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু মমতা ব্যানার্জির কিসের কষ্ট? গরমে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, মাথা খারাপ হয়ে গেছে মমতা ব্যানার্জি। নালে বলুন, আমরা যাত্রা বার করেছি সারা পশ্চিমবাংলায়, পরিবর্তন যাত্রা। উনি ধর্ণা শুরু করলেন, তাও একদিন দুদিন, লোক এলো না, বন্ধ করে দিলেন। যাত্রাও শেষ, ধর্ণাও শেষ। কিন্তু মজার ব্যাপার যেটা দেখলাম আমরা, তিনি খিচুড়ি রান্না করলেন সবার জন্য ওখানে। হাতা আর খুন্তি কড়াই নিয়ে, গ্যাসও নাই, উনুন নাই, চাল নাই, ডাল নাই, তিনি খিচুড়ি রান্না করে লোককে দেখালেন, আমরা দেখলাম। আর উনি এই প্রথমবার খিচুড়ি করেছেন এরকম নয়,
15 বছর ধরে তিনি খিচুড়ি রান্না করছেন, 26,000 শিক্ষকের চাকরি খিচুড়ি পাকিয়ে দিলেন। কে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে, কে পয়সা দিয়ে চাকরি পেয়েছে বোঝা গেল না, এখনো তাদের ভাগ্য জুড়ে আছে। আরো প্রায় শোনা যাচ্ছে 42,000 এরকম কর্মচারী আছেন যাদেরও খিচুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন, তাদের চাকরি কতদিন আছে কেউ জানে না। আমাদের এখানে বন্যা হয়, ফসল নষ্ট হয়ে যায়, সেখানেও মমতা ব্যানার্জি খিচুড়ি বানান। কার ফসল নষ্ট হলো, কার হলো না, কার অ্যাকাউন্টে টাকা যাবে বোঝা যায় না, সব খিচুড়ি। বন্ধুগণ, আয়লা এলো, আমফান এলো, সেখানেও দেখলাম খিচুড়ি। যার বাড়ি ভেঙেছে সে টাকা পেল না, যার বাড়ি ভাঙেনি তার পার্টির লোক সে টাকা পেয়ে গেল। 15 বছর ধরে খিচুড়ি বানাচ্ছেন। তাই এই খিচুড়ি সরকারকে আমরা আর সহ্য করব না। শুধু আমরা বিজেপির লোকেরা নয়, আমরা তো 2-2.5 কোটি লোক যারা বিজেপিকে ভোট দিই। আজকে পশ্চিমবাংলার 10.5 কোটি মানুষ খিচুড়ি খেয়ে খেয়ে অতিষ্ঠ। তারা পশ্চিমবাংলার পরিবর্তন চাইছেন। কারণ এই সরকার 15 বছর কেবল লুট করেছে, যুবকদের চাকরি লুট করেছে, বয়স্কদের ওষুধপত্র লুট করেছে, বাচ্চাদের মিড ডে মিল থেকে জুতো সাইকেলের পয়সা লুট করেছে। সেই জন্য একে বন্ধ করতে হবে। গ্রামগঞ্জের গরিব মানুষের আবাস যোজনার টাকা লুট করেছে, শৌচালয়ের টাকা লুট করেছে, মহিলাদের যে লোন তা লুট করেছে, ছাত্রদের স্টাইপেন্ডের টাকা লুট করেছে, আর শেষে চাকরি লুট করলো। এই লুটের সরকার, এই ধর্নার সরকার, এই চোরে ডাকাতদের সরকার, এর বিদায় দিতে হবে। তাই আমরা সংকল্প সভা আর সংকল্প যাত্রা করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসে গেছেন, কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছাবেন। তিনি গত 2-3 মাস ধরে আসছেন। তিনি একটা আহ্বান করেছেন, পশ্চিমবঙ্গকে একবার বিজেপির হাতে তুলে দিন, আমাদের হাতে তুলে দিন, ডাবল ইঞ্জিন সরকার করে দিন। আমরা পশ্চিমবাংলায় এমন পরিবর্তন করব যেটা আপনি স্বপ্ন দেখছেন। সেই পরিবর্তন এরকম হবে। আর পরিবর্তন মানে আপনার ছেলে বাড়ি ছেড়ে গুজরাট মহারাষ্ট্রে চাকরি করতে যাবে না। পশ্চিমবাংলার 50 লক্ষ যুবক বুড়ো বাবা মাকে ছেড়ে, ছেলে বউকে ছেড়ে, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে পশ্চিম ভারতে চাকরি করছে। পুজোর সময় বাড়ি আসতে পারে না, ঈদের সময় মহরমের সময় বাড়ি আসতে পারে না, দীপাবলি দোলের সময় বাড়ি আসতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বয়স্ক মানুষ যারা চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতে যান, তারাও যেতে আসতে পারেন না। তাই প্রধানমন্ত্রী দেখলেন, যতক্ষণ না আমরা ক্ষমতায় আসছি পশ্চিমবাংলার মানুষের জীবনের যতটা সুরাহা করা যায়। তাই গত 2 মাসে তিনি পশ্চিমবঙ্গকে 12টা ট্রেন দিয়েছেন, 12টা। তার মধ্যে 6টা তো বন্দে ভারত আছে, এছাড়া অমৃত ভারত ছাড়াও এক্সপ্রেস ট্রেন, যাতে এই 50 লক্ষ ছেলে বছরে একবার বাড়ি আসতে পারে। যে বয়স্করা এখানে চিকিৎসার অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন, হসপিটালে ডাক্তার নেই, নার্স নেই, ওষুধ নাই, তারা চেন্নাই, মুম্বাই, ভেলোর, দিল্লি যান চিকিৎসা করতে, যাতে তারা যেতে পারেন তাই ট্রেন দিয়েছেন। আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার জন্য চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাই, দিল্লিতে পড়তে যায়, তারা যাতে যাতায়াত করতে পারে তাই প্রধানমন্ত্রী ট্রেন দিয়েছেন। আর এই ট্রেন শিলিগুড়ি থেকে আরম্ভ করে রাধিকাপুর, বালুরঘাট, মালদা, শিয়ালদা, কলকাতা এবং হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ছে। সেই জায়গায় যাচ্ছে, চেন্নাই যাচ্ছে, বেঙ্গালুরু যাচ্ছে, মুম্বাই যাচ্ছে, উত্তরপ্রদেশের লখনৌ, দিল্লি, গুজরাট, যেখানে আমাদের ছেলেরা চাকরি করে, যেখানে পড়াশোনা করে, এই ট্রেনগুলি তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকেও 600 কোটি টাকার বেশি বিভিন্ন প্রজেক্ট ঘোষণা করবেন। এর আগে খড়গপুর থেকে কাশী, শিলিগুড়ি থেকে কাশী গ্রিনফিল্ড রোড বানিয়ে দিচ্ছেন। 4 লেন রোড, 4 লেন, থার্ড লেন হয়ে গেছে রেলওয়ে, 4th লেন তৈরি হচ্ছে। প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ক্লাস কলকাতার কালীঘাট থেকে গুয়াহাটির কামাখ্যা পর্যন্ত এই যাত্রা শুরু করেছে, বাঙালিকে প্রথম দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এখানে রাজ্যে রাজ্যে যেমন এয়ারপোর্ট হয়েছে, পশ্চিমবাংলায়ও কলকাতা, বাগডোগরা, দুর্গাপুরের সঙ্গে সঙ্গে বার্নপুর, কুচবিহার, বালুরঘাট একাধিক এয়ারপোর্ট দিয়েছেন, যাতে মানুষ যাতায়াত করতে পারে, এখানে শিল্পের উন্নতি হয়। কিন্তু এখানে যে সরকার আছে তার ইমেজ এমন হয়ে গেছে, কোন শিল্পপতি ভয়ে আসেন না। 2 বছর হয়নি উড়িষ্যাতে আমাদের সরকার হয়েছে, এখানকার বহু শিল্পপতি তাদের এখানে জমি থাকা সত্ত্বেও এখানে কারখানা না করে
উড়িষ্যার কটকের কাছে গিয়ে সার কারখানা করছেন। 1 বছরের 1.5 বছরের মধ্যে তাদের জমি পেয়ে গেছেন, কারখানার কাজ শুরু হয়ে গেছে, পাঁচিল শুরু হয়ে গেছে, কারখানা তৈরি হচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় জমি পড়ে আছে। 10 বছর ধরে এখানে আইটি কোম্পানি থেকে বিভিন্ন কোম্পানির জমি পেয়েছে, কারখানা করছে না, চাকরি হচ্ছে না, চাকরির জন্য আমাদের বাইরে যেতে হচ্ছে। তাই এই সরকার যতদিন থাকবে গরিব মানুষের জীবনের উন্নতি হবে না, চাকরি হবে না, যাতায়াত ব্যবস্থা সুবিধা হবে না, আইন শৃঙ্খলা ঠিক হবে না, শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক হবে না, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঠিক হবে না। তাই এর যদি পরিবর্তন করতে হয় এই সরকারকে সরাতে হবে, তাহলে বাংলার মানুষের জীবনের পরিবর্তন হবে। দেখুন গ্রামগঞ্জে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানকার গরিব মানুষের জন্য আবাস যোজনার বাড়ি দিচ্ছেন, শৌচালয় দিচ্ছেন, জল দিচ্ছেন, গ্যাস দিচ্ছেন, বাচ্চাদের মিড ডে মিল দিচ্ছেন, কিন্তু সব চুরি হয়ে যাচ্ছে। এর দ্বারা কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? এখানে গ্রামগঞ্জের বহু মানুষ এসছেন, যারা আমাদের ওইখানে থাকেন জঙ্গলমহল থেকে উত্তর বাংলা, গরিব থেকে গরিব। এই 80 বছরে ব্রিটিশ আমলের পর থেকে উন্নতি হয়নি, বাড়ির সামনে জল নাই, মাথায় ছাদ নাই। তাই প্রধানমন্ত্রী তাদের জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু লুট হয়ে যাচ্ছে। গরিব মানুষ, সাঁওতাল আদিবাসী, সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা, সবর, উড়াও, খেড়িয়া, কুর্মি, ধোপা, নাপিত, ছুতর, কামার, কুমোর, এ সমস্ত মানুষ যারা গ্রাম বাংলায় থাকেন, খেটে খান, যাদেরকে 5 বছর ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাড়ি বাড়ি রেশন পৌঁছে দিচ্ছেন, সেই মানুষগুলির আবাস যোজনার টাকা চুরি হয়েছে, বাড়ির সামনে শুদ্ধ পানীয় জলের টাকা চুরি হয়েছে, ফুটপাতের টাকা চুরি হয়েছে, জেলা পরিষদ পঞ্চায়েতের টাকা চুরি হয়েছে, গ্যাসের টাকা থেকে রেশনের টাকা চুরি হয়েছে। এই চুরি বন্ধ করতে হলে এখানে পরিবর্তন করতে হবে। সেই জন্য আজকে পরিবর্তন সভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই আহ্বান করেছেন। এখানকার মানুষের জীবনে কোনো সুরক্ষা নেই। 60 থেকে 70 বছরের কোনো মহিলা বাড়ির বাইরে গেলে সে সুরক্ষিত থাকে না। আপনার বাড়ির মেয়ে স্কুল যাক, টিউশন যাক, যতক্ষণ না ফিরে আসে আমরা বারবার ফোন করি, খোঁজ করি কোথায় গেল মেয়েটা। বাড়ির মেয়েরা, বউরা যদি বাজার হাট যান, সন্ধ্যা হয়ে গেলে আমরা চিন্তায় থাকি ঠিকঠাক ফিরবে তো। কারণ হাজার হাজার মহিলা, মেয়ে পশ্চিমবাংলার গ্রামগঞ্জ থেকে গায়েব হয়ে যাচ্ছে। পুলিশের কাছে যান, সে একটা রিপোর্ট নেয় না, এফআইআর নেয় না, বলছে দেখুন কোথায় আত্মীয় বাড়ি গেছে, কোন ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে, পুলিশের কোনো দায়িত্ব নাই। পুলিশ খালি টিএমসির নেতাদের প্রোটেকশন দিচ্ছে, কাটমানি তুলে পার্টিকে দিচ্ছে, আর দিদিমণির সভাতে লোক নিয়ে আসে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের কোনো কাজ নাই। আজ যেই নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে পরিস্থিতি, সব জায়গায় আমাদের কর্মীদের কেস দেওয়া হচ্ছে, কিংবা পুরনো কেসে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। আমি পুলিশের বন্ধুদের বলে দিচ্ছি, চিরদিন কাহারও সমান নেই যায়। নির্বাচনের পরিবর্তনের হাওয়া চারদিকে শুরু হয়ে গেছে, সেই পরিবর্তনটা খেয়াল করে নিজেদের ব্যবহার ঠিক করুন। সিপিএম ভেবেছিল আজীবন থাকবে, চলে গেছে। তার আগে কংগ্রেস গেছে, গেছে তো গেছে, খুঁজে পাওয়া যায় না নমুনা হিসাবে। আজ টিএমসির পালা, তারা নিজেদেরকে ভগবান মনে করছে। তার ইঞ্চি সাইজে, ফুট সাইজের নেতারা নিজেদেরকে বাহুবলী মনে করছে। বিজেপির লোকেদের কষ্ট দেওয়া, কেস দেওয়া, মারা, দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া। 21 সালে দোকান বন্ধ করেছে, আমাদের এখনো খোলেনি, 5 বছর হয়ে গেল। পুলিশ বলছে দেখছি, দেখবো। জীবিকা হারিয়ে গেছে আমাদের সেই কর্মীকে, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে যেতে হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে। এরকম একটা নয়, দুটো নয়, 100 হাজার হাজার কর্মীর সঙ্গে ঘটেছে। বাংলার বাইরে যেখানে যাবেন, বাংলার ছেলেকে দেখবেন লেবার, বেয়ারার, ওয়েটার এইসব কাজ করতে। এর থেকে পরিবর্তন চাই, তাই আমরা পরিবর্তন সংকল্প সভাতে এসেছি। হেলিকপ্টার দেখা গেছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে আসছেন আমাদের জনসভার দিকে। সবাই একবার পতাকা নাড়িয়ে, টুপি নাড়িয়ে, গামছা নাড়িয়ে তাকে অভিনন্দন করুন, যিনি বারবার পশ্চিমবাংলায় আসছেন পশ্চিমবাংলার মানুষের জীবনের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য। যতটা সম্ভব করার তিনি করেছেন, আগামী দিনে আরো করবেন। তাই নরেন্দ্র মোদী খালি বাংলায় নয়, সারা দেশে নয়, সারা বিশ্বের কাছে একটা আশার কেন্দ্র। যুদ্ধ বন্ধ করতে মোদীজি, আবহাওয়া কেন পরিবর্তন হচ্ছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ সমাধান কে করবে? মোদীজি। ঝগড়া বাঁধাবে কে? মোদীজি। সেই মোদীজি আজ আমাদের কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন, তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এখনো মোদীজির হেলিকপ্টার আসেনি, পেছনে আসছে। সবাই মিলে তাকে স্বাগত জানান। ভারত মাতা কি, এমন জোরে স্লোগান দিন যাতে মাননীয় নরেন্দ্র মোদী হেলিকপ্টার থেকে আমাদের আওয়াজ পান।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, कोलकाता महानगरीতে नरेंद्र मोदी स्वागतम। এই মাঝখানে হেলিকপ্টারে সম্ভবত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছেন, একবার জোরে আওয়াজ দিন, ভারত মাতা কি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাথার উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন রেসকোর্সের দিকে, জোরে পতাকা নাড়িয়ে, টুপি নাড়িয়ে, গামছা নাড়িয়ে স্বাগত করুন, ভারত মাতা কি, বন্দে মাতরম, নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, नरेंद्र मोदी स्वागतम, विश्व वरेण्य नेता नरेंद्र मोदी स्वागतम, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम। पश्चिम बांगलार मानुष आज हृदय दिए माननीय नरेंद्र मोदी के स्वागत करছে। भारत माता की, वंदे मातरम। पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, পরিবর্তন দরকার। 26-এ নির্বাচন, 26-এ নির্বাচন, টিএমসির বিসর্জন, 26-এ নির্বাচন, 26-এ নির্বাচন। ধন্যবাদ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये बेटी कब से चित्र लेके खड़ी है, कोई कलेक्ट कर लीजिए ताकि वो बेटी आराम से बैठ सके। जरा एसपी जी के लोग ये कलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया चित्र बनाया आपने। भारत माता की, भारत माता की। আমার প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী ভাইও বোনেরা, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সুশ্রদ্ধ প্রণাম। बंगाल की ऐतिहासिक धरती, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुष का ये ऐतिहासिक जनसैलाब, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है। ये आपका उत्साह, ये आपका जोश, बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास साक्षी है, जब जब बंगाल देश को दिशा देता है, ये ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है। इस मैदान से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठी आवाज, और वो आवाज हिंदुस्तान में एक क्रांति बन गई थी। और उसका नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों के अत्याचार और लूट का खात्मा हुआ। आज एक बार फिर ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है।
बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लुट चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार। साथियों, कल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है। असली चोर कौन है, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है। अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है। साथियों, आज भी इस विशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जैम करवाया, भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए। लेकिन निर्मम सरकार, साफ साफ देख लो, आज के जन सैलाब को रोक नहीं पाई हो। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। भाजपा के साथ, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद विद्यासागर, बागा जतीन और खुदीराम बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोक माता रानी रोशमनी, ऐसी सभी महान विभूतियों ने जिस बंगाल की परिकल्पना की थी,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बंगाल का निर्माण करेगी, नवनिर्माण करेगी। साथियों, बंगाल का विकास नेक नियत से होगा, सही नीतियों से होगा। बंगाल में अभी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के जरिए बीजेपी दिन रात बंगाल के विकास में लगी हुई है। आज भी अभी मैंने 18,000 करोड़ रुपए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अभी 18,000 करोड़ कितना 18,000 करोड़ कितना 4 दिन पहले ही कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के लिए मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। ये सभी प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। इसका फायदा यहां के सामान्य मानवी, किसान, व्यापारी और स्टूडेंट्स को मिलेगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार ने बंगाल के युवाओं को पलायन का अभिशाप दिया है। आप सब जानते हैं, बंगाल के युवा प्रतिभा और हुनर में सबसे आगे है। बंगाल के युवा मेहनत करने में सबसे आगे है। बंगाल एक समय पर पूरे भारत के विकास को गति देता था। बंगाल व्यापार और उद्योगों में सबसे आगे था, लेकिन आज हालत क्या है? यहां का युवा ना डिग्री ले पा रहा है और ना ही उसे रोजगार मिल रहा है। आपके बेटे बेटियों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। साथियों, पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे और बंगाल में विकास के काम ठप पड़े रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा बंगाल पीछे होता चला गया। उद्योग धंधे बंद होते चले गए। यहां टीएमसी सरकार में नौकरियां खुलेआम बेची जा रही है। भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, ये हालात बदले। बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। ये नौजवान बंगाल के विकास का नेतृत्व करें। এই স্বপ্ন আপনার
আর এই স্বপ্ন পূরণ করা মোদির গ্যারান্টি। मोदी गारंटी। मोदी 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 मोदी। साथियों, टीएमसी सरकार का एक ही एजेंडा है। ये टीएमसी वाले न खुद काम करेंगे न करने देंगे। जब तक इनको अपना कट मनी नहीं मिल जाता, ये किसी भी योजना को गांव गरीब तक नहीं पहुंचने देते। इसलिए टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को रोक कर रखती है। आप देखिए, हम कारीगरों और कामगारों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं। हमारे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, ऐसे हुनरमंद लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन निर्मम सरकार ने बंगाल में योजना पर ब्रेक लगा रखी है। मुझे बताइए भाइयों, मेरे इन विश्वकर्मा भाइयों को भारत सरकार के पैसे पहुंचने चाहिए कि नहीं पहुंचने चाहिए? पहुंचने चाहिए। उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केंद्र सरकार पैसे दे रही है, बंगाल को कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये विश्वकर्मा समाज के मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को उसे वंचित रखा जाता है। साथियों, देशवासियों को मुफ्त बिजली देने के लिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए हर लाभार्थी को 75 से 80 हजार रुपया देती है। आपको, बंगाल के मेरे भाई बहनों को, हर परिवार को मोदी सरकार 75 से 80 हजार रुपया देती है। जो लाभार्थी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ता है, उसके घर का बिजली बिल 0 हो जाता है। लेकिन बंगाल सरकार इसे भी लागू नहीं होने दे रही। आप मुझे बताइए, आपका बिजली बिल 0 होना चाहिए कि नहीं? बिजली बिल 0 करने के लिए मोदी की मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जो इसे रोकते हैं वो आपके दुश्मन है कि नहीं है? बंगाल के दुश्मन है कि नहीं है? हर परिवार के दुश्मन है कि नहीं है? साथियों, बंगाल के विकास में चाय बागानों और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की बड़ी भूमिका है। लेकिन चाय बागानों के श्रमिकों को पीएम चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए, चाय बागान के मेरे श्रमिकों को ये लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
केंद्र सरकार की इस योजना में बंगाल सरकार रोड़े अटका रही है। साथियों, आप सबने देश भर में पीएम आवास योजना की सफलता के बारे में सुना है। दुनिया के लोग भी जब सुनते हैं ना, अचरज करते हैं। जो लोग बंगाल से बाहर रह रहे हैं, ऐसे हर गरीब परिवार को पक्का घर मिल रहा है। लेकिन यहां क्या हुआ? योजना का नाम बदल दिया गया, लाभार्थियों की सूची में गड़बड़ की और जिन गरीबों को घर मिलना चाहिए था, वे आज भी इंतजार कर रहे हैं। ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से बंगाल के गरीबों को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये टीएमसी सरकार मिलने देगी क्या? ये निर्मम सरकार मिलने देगी क्या? ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? गरीबों को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? साथियों, इतना ही नहीं, यही हाल जल जीवन मिशन का भी है। बंगाल में लोग पूछ रहे हैं, जब देश के बाकी हिस्सों में हर घर जल पहुंच सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं? भाइयों बहनों, केवल बिजली, पानी, सड़क और घर, इसकी बात नहीं है। ये टीएमसी सरकार अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही है। देश के करोड़ों लोग इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। मुझे बताइए, गरीबों को बीमारी में 5 लाख रुपए तक की मदद पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? मोदी दे रहा है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये टीएमसी सरकार बीमार लोगों की भी दुश्मन है कि नहीं है? अत्याचारी है कि नहीं है? लेकिन बंगाल के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया वाली आयुष्मान योजना से भी, उस अधिकार से भी वंचित रखा गया है। साथियों, आज बंगाल के किसान की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। मुझे बताया गया है कि 2-3 दिन पहले ही चंद्रकोना में हमारे एक आलू किसान ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। पश्चिमी मिदनापुर से हुगली और बर्दवान तक किसानों से झूठे वायदे और सरकारी खरीद में घोटाला ही ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गया है। टीएमसी के कट, कमीशन और करप्शन के कारण गंदी राजनीति के लिए किसानों की जिंदगी से, गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी से, माताओं बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा। गरीब को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये मोदी की गारंटी है।
हर गरीब परिवार को बता देना, जैसे ही टीएमसी की सरकार जाएगी, गरीबों का पक्का घर बनना शुरू हो जाएगा। टीएमसी जाएगी तो हर घर साफ जल पहुंचेगा। टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा। टीएमसी जाएगी तो कारीगरों को नए अवसर मिलेंगे। टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में सुशासन आएगा। साथियों, हमारे बंगाल ने आजादी के बाद विभाजन सहा, विभाजन की आग देखी, मजहबी दंगे देखे, बाद के दशकों में अस्थिरता देखी, घुसपैठ का दौर देखा, रक्तपात सहा। इस सब की सबसे बड़ी भुक्तभोगी अगर कोई थी तो बंगाल की माताएं, बहनें, बेटियां, बंगाल की महिलाएं थी। लेप की सरकार में अपहरण, हत्या, बलात्कार का वो दौर कोई नहीं भूल सकता। इसलिए बंगाल के आप लोग लेप को हटाकर बड़ी आशा के साथ टीएमसी को लेकर आए। आपने टीएमसी पर भरोसा किया, लेकिन टीएमसी ने लेप के गुंडों और माफियाओं को ही अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। आज बंगाल में अपराधियों को खुली छूट है। आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। बंगाल का कोई इलाका ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। आप याद करिए, कॉलेज परिसर में दुष्कर्म की घटना, नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के मामले, टीएमसी कार्यालय में महिला से बलात्कार, 7-8 साल की बच्चियों से बलात्कार के खौफनाक कुकृत्य, कहीं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म, ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई न कोई टीएमसी का नेता होता है या टीएमसी से जुड़ा होता है। साथियों, यहां निर्मम सरकार खुलेआम बलात्कारियों को संरक्षण देती है। अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। आप मुझे बताइए, अपराधियों को बचाया जाता कि नहीं बचाया जाता? बलात्कारियों को बचाया जाता कि नहीं बचाया जाता? संदेश खाली की वो तस्वीरें और टीएमसी का रवैया, आरजीकर अस्पताल की उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी, बंगाल के लोग भूले नहीं हैं। टीएमसी कैसे खुलेआम अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती थी। साथियों, इसी मानसिकता का परिणाम है आज महिलाओं के खिलाफ एसिड अटैक जैसे घिनौने अपराध इतने ज्यादा मात्रा में पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। जो बंगाल
एक समय देश का सबसे प्रगतिशील राज्य होता था। आज वहां शाम होते ही माएं बेटियों को फोन करके कहती है, बाड़ी फिर ऐशो सौंदे न माराइए। शक्ति की पूजा करने वाले बंगाल को ऐसे हालात मंजूर नहीं होंगे। मैं बंगाल की मेरी माताओं बहनों को भरोसा दिलाता हूं, आप भाजपा को, बीजेपी को अपना आशीर्वाद दीजिए। बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित होगी और अपराधी जेल में होंगे, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों की बैसाखी पर चलती है। रंगबाजी और कटमनी ये टीएमसी की कमाई का जरिया है। ये लोग जानते हैं, जिस दिन बंगाल के लोग खुलकर सामने आ गए, टीएमसी की विदाई पक्की है। और मैं ये दृश्य देख करके कह सकता हूं, अब टीएमसी को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। इसलिए ये बंगाल के आप लोगों को डरा धमका कर रखना चाहते हैं। इसके लिए टीएमसी वाले माफिया गिरोहों को पालते हैं, ये कट्टरपंथियों को संरक्षण देते हैं और ऐसे गिरोहों की ताकत बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को बुलाते हैं, घुसपैठियों को। साथियों, ये टीएमसी मां माटी मानुष के नारे पे सत्ता में आई थी। आज वही मां रो रही है, माटी को लूटा जा रहा है और बंगाली मानुष बंगाल छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। घुसपैठियों की वजह से आज बंगाल की रोटी, बेटी, माटी, उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। ये लोग बंगाल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और बंगाल के लोगों की जमीनों पर, बंगाल की माटी पर इन घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है। इसका परिणाम आज सबके सामने है। बीते दशकों में बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है तो पूरी टीएमसी उसका विरोध करती है। वो हिंदू जिन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जिन्होंने हमेशा अविभाजित बंगाल को, भारत को अपनी मातृभूमि माना, टीएमसी वाले उन्हें नागरिकता देने का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके लिए
उनकी वोट बैंक ही सबसे प्रमुख है। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बढ़ते, इसलिए ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं ताकि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हट न जाए, वोटर लिस्ट शुद्ध न हो जाए। और ये तो ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके भी नाम निकालने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, डेमोग्राफी के इस खतरनाक बदलाव ने आज बंगाल को असुरक्षित बना दिया है और अब तो यहां खुलेआम धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे। संविधान की कुर्सी पर बैठकर ऐसी धमकी, करोड़ों बंगाली लोगों को खत्म करने की बात आपके मुंह में शोभा नहीं देती है। मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग हैं जो टीएमसी सरकार के इशारों पर करोड़ों लोगों को खत्म कर देंगे? साथियों, धमकाने डराने की इस राजनीति को टीएमसी ने इसे अपना हथियार बना लिया। चुनाव में वोटरों को धमकी, सरकार की नीतियों के आलोचकों को धमकी, मीडिया को धमकी, विपक्ष को धमकी। ये बंगाल में खौफ का कैसा माहौल बनाकर रखना चाहते हैं, ये पूरे देश को जानना चाहिए। ये लोग कहते हैं तृणमूल को जिसका वोट नहीं, टीएमसी को जिसका वोट नहीं, तो वो बंगाली नहीं। तृणमूल को वोट नहीं तो सरकार योजना का उसे लाभ नहीं, तृणमूल को वोट नहीं तो घरों में बिजली पानी नहीं, टीएमसी सिंडिकेट के जरिए नहीं जाओगे तो कोई सप्लाई नहीं। लेकिन साथियों, मैं टीएमसी को याद दिलाना चाहता हूं, टीएमसी की गुंडागर्दी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। टीएमसी को वो गुंडों, ये टीएमसी के वो गुंडे जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। बीजेपी सरकार में खौफ हर अपराधी को होगा, खौफ हर घुसपैठिए को होगा, खौफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को होगा, क्योंकि कानून अपना काम करेगा, कानून का राज आएगा। ऐसे लोगों को
मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे अपराधियों को सिर्फ एक ही जगह होगी, एक ही जगह होगी, जेल, जेल, जेल। साथियों, बंगाल की निर्मम सरकार में आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहां का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन है। आदिवासी समाज के साथ कैसा अन्याय होता है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब तो टीएमसी सरकार इन्होंने सभी सीमाएं लांघ दी है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी। उन्हें संथाल आदिवासी परंपरा के पावन उत्सव में शामिल होना था, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया। क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, उन्हें खुद बड़े दुखी मन से खेद व्यक्त करना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है। उन्होंने करोड़ों महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है। इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया है। और इसका जवाब बंगाल के लोगों से टीएमसी को मिलने वाला है, निर्मम सरकार को मिलने वाला है। साथियों, टीएमसी सरकार ने बंगाल को पूरी तरह से अराजकता के हवाले कर दिया है। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आए हर दिन हमले करने के वो रास्ते खोजते रहते, हमले करते रहते। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा है, जब भी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है, मतदाता सूची की शुद्धि की कोशिश करता है, तब टीएमसी उसके खिलाफ हमला करने लगती है। जो संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, उसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसा ही व्यवहार देश की सेना को लेकर दिखाई देता है। जब 2019 में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर निर्णायक कार्रवाई की, तब टीएमसी ने देश की वायुसेना से कार्रवाई का सबूत मांगा। साथियों, यहां राज्य सरकार पुलिस को स्वतंत्र रूप से जांच करने नहीं देती। जब राष्ट्रीय एजेंसियां टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों की जांच करना चाहती हैं, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश होती है।
अब जरा सोचिए, न्याय के लिए लोग आखिर कहां जाएंगे? साथियों, तृणमूल वाले यही अराजकता दिल्ली तक फैलाने की कोशिश करते हैं। आपने संसद में भी देखा है, सदन के भीतर कैसे कागज फाड़े जाते हैं, कैसे बहस को रोका जाता है, कैसे सदन की कार्यवाही को बाधित किया जाता है। देश टीएमसी की शर्मनाक हरकतें देखकर हैरान होता है। साथियों, बंगाल के प्रबुद्ध लोग अब इस अराजकतावादी सरकार के खिलाफ संकल्प ले चुके हैं। इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इसी धरती के लोग करने वाले हैं। साथियों, आज यहां जो जनसैलाब उमड़ा है, ये पश्चिम बंगाल की जागती हुई चेतना है। ये उस बदलाव की आहट है जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर सुंदरबन के द्वीपों तक, उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर कोलकाता की गलियों तक, आज हर जगह पर एक ही चर्चा है, बदलाव चाहिए और ये बदलाव अब होकर रहेगा। साथियों, बंगाल की आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है। बंगाल का नौजवान कभी हार मानने वाला नहीं है। बंगाल की बेटियां कभी हार मानने वाली नहीं है। बंगाल का किसान कभी हार मानने वाला नहीं है। जब जब इस भूमि के सामने चुनौतियां आई है, तब तब यहां की जनता ने साहस के साथ उनका सामना किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी हमें संदेश दिया है। उन्होंने कहा था, विपदे मोरे रखा करो, ये नोहे मोर प्रार्थना विपदे आमी ना जाए जेनो कोरी बॉय। आज भी वही समय है। कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि बदलाव संभव नहीं है, लेकिन याद कर रहिए और याद जरूर रखें, जब जनता ठान लेती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और बंगाल की जनता ने जब भी ठाना है, इतिहास बदल कर दिखाया है। आज मुझे इस ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में वही आत्मविश्वास मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। याद रखिए, इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। इस बार चुनाव बंगाल की आत्मा को बचाने का चुनाव है। इस बार चुनाव व्यवस्था बदलने का है। इस बार चुनाव कटमनी से छुटकारे का है। इस बार चुनाव डर से मुक्ति का है। मैं आने वाले परिवर्तन के लिए मेरे बंगाल के भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, पाल्टानो दरकार, बीजेपी सरकार, पाल्टानो दरकार, बीजेपी सरकार, पाल्टानो दरकार, बीजेपी सरकार, पाल्टानो दरकार। बीजेपी सरकार। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জয় হোক। জয় হিন্দ। भारत माता की, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे